Very good morning, 8th class. Today we will cover DG for your history book, chapter number 6, colonialism and the city, जिसमें हम पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ एन इंपीरियल कैपिटल। दिल्ली किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, किस तरीके से उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुगल्स के टाइम पे था, और कैसे वो कॉलोनियलिज्म मतलब कि ब्रिटिश काल में जो है किस तरीके से उसका जो है रीबिल्डिंग हुई। ठीक है। ट्रेसिंग द emergence ऑफ दिल्ली until द 19th century। 19th century तक मतलब पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से emergence हुआ दिल्ली का। 19वीं शताब्दी तक क्या था दिल्ली का जो है, मतलब किस तरीके से उसका जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस तरीके से बनी हुई थी, किस किस की कैपिटल रह चुकी थी, ये सब चीजें हम देखते हैं। Arjuna and Krishna had burnt the Khandava forest to build a city here. Yudhishthira had named it Indraprastha. Whether Indraprastha was a myth or not, in the late 12th century, Prithviraj Chauhan came to rule the region. Then the sultans came and made it their capital. Later, the Mughals made it the seat of their empire. क्या था सबसे पहले? पृथ्वीराज चौहान, फिर जो आपके सुल्तान्स थे वो, और फिर मुगल्स ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। When the British came, they transformed it back into a provincial town. Finally, when India became independent, it was the natural choice for the country's capital. That is Delhi, the city that was made the capital 14 times. ठीक है, तो फाइनली जो आज के समय में हमारी दिल्ली जो है कैपिटल है, आपको पता है इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। आज से पहले यानी कि जो आज आफ्टर फ्रीडम जो हमारी इंडिया कैपिटल बनी उससे पहले तक जो है 13-14 टाइम तक ये जो है कैपिटल रह चुकी थी अलग अलग रूलर्स के अंडर में। ठीक है, तो एक नेचुरल चॉइस थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो दिल्ली वाज एन नेचुरल चॉइस टू बी चूजन एज अ कैपिटल टेरिटरी ऑफ द नेशन दैट इज इंडिया। Though it did not have any typical features of a capital city, what do you think made Delhi such a popular choice for a capital city? अब जो है हम देखेंगे कि क्या ऐसे रीजंस थे, क्या ऐसे कारण थे कि दिल्ली जो है एक पॉपुलर चॉइस था एक कैपिटल सिटी के रूप में चुना जाने के लिए। क्या क्या रीजंस थे कि लोग चाहते थे कि दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बनाया जाए। 12th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। After the Epic Age, Delhi shot back into prominence as a commercial center only in the 12th century, when the Tomara Rajputs made it their capital city. Rich Rajasthani and Rajput merchants came to live here, bringing with them a lot of wealth. They constructed beautiful temples and palatial houses. They even introduced coinage of their own called Dehliwal. Then came Prithviraj Chauhan, who ruled Delhi and fortified the city of Kila Rai Pittora with high-rise walls and ramparts. But for whom was this fortification? Invaders or plunderers? Delhi's commercial growth was attracting both invaders and plunderers, especially Mahmud of Ghazni. From Ghazni to Ghori to the Mamluks, Delhi's popularity was spreading among the invaders from the far north. Finally, in 1206 AD, the Mamluks,
Slaves who had become rulers invaded Delhi, established their rule, and made it their main garrison town. देखो क्या था, जो दिल्ली की वेल्थ थी, ठीक है, वो इन्वेडर्स को लगातार, इन्वेडर्स कौन होते हैं, जो बाहर से आके आक्रमण करते हैं, ठीक है, और कब्जे जमा लेते हैं, तो ऐसे इन्वेडर्स को लगातार अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। 1206 में क्या होता है, जो ये होते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये क्या था, ये एक स्लेव था, ठीक है। ये लोग क्या बनते हैं, क्योंकि इसका जो है राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता है इस रूलर का, तो इन लोगों को फिर ये जो है, जिनको इसने गोद लिया हुआ होता है, इनको जो है ये रूलर बनाता है। और ममलूक्स एस्टैब्लिश देयर रूल एंड मेड दिल्ली द मेन गैरिसन टाउन, ठीक है, और फिर ये जो है एक मेन कैपिटल सिटी के रूप में जो है एमर्ज होता है। The Qutub Minar was built by them. कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं। 14th सेंचुरी में देखते हैं। After the Mamluks, the Khiljis became the sultans. They cleared the forests, built new fortresses, protected Delhi's trade routes, and promoted regional trade. The Mongols were the Khiljis' main threat. Alauddin Khilji built the Siri fort in 1303 in a ravine north of Qutub Minar. Later, when Ghiyasuddin Tughlaq became the Delhi Sultan, he wanted protection against the heavy attacks of the Mongols. He commissioned the Tughlaqabad fort as protection from Mongol attacks. Towards the end of the 14th century, the Tughlaqs were losing their control due to succession battles. So, when time लगातार बैटल्स हो रही थी, इस वजह से तुगलक जो है अपना कंट्रोल यहाँ से खोते जा रहे थे। Timur invaded Delhi in 1398. He easily sacked, destroyed, and ruined the city. तिमूर क्या करता है, 1398 में इन्वेड करता है, आक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है यहाँ पे, और दिल्ली को जो है रूइन कर देता है, नष्ट कर देता है यहाँ की बिल्डिंग्स को। But before leaving, he chose the Sayyids as the next sultans of Delhi. ठीक है, सैयद जो है अगले सुल्तान। Why do you think Delhi was under so much attack from the Mongols and other invaders from the north? Delhi was strategically positioned with respect to the northwest, from where the Mongols and other invaders were entering India. देखो क्या था, जो दिल्ली की लोकेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि क्या हो रहा था, देखो नॉर्थ वेस्ट की साइड में सिचुएशन है इसकी, तो क्या था, इन्वेडर्स को जो है यहाँ से एंटर करना, जो है इन्वेड करना, चाहे वो मंगोल्स हों, ठीक है, या फिर जो है अफगान रूलर्स हो, इन सबको जो है आना इजी रहता था। तो ये दिल्ली जो है इनका इजी टारगेट रहता था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट टाउन होता था, क्योंकि ज़्यादातर जो है रूलर्स यहीं पे रहते थे, तो अगर इसको इन्वेड कर लिया तो वो लोग जो है आसानी से टेरिटरी में एंटर हो सकते थे। Also, invaders were attracted for its wealth and grandeur. और वेल्थ भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, तो वो भी लोगों को अट्रैक्ट करती थी। The next important phase in Delhi's history was the rulership of Ibrahim Lodi. उसके बाद कौन आता है, इब्राहिम Babur attacked and defeated the Sultan's army. Babur went on to establish Mughal rule in Delhi and India. सबसे पहला जो है मुगल रूलर कौन होता है, बाबर। बाबर जो है दिल्ली में भी और भारत में भी मुगल साम्राज्य की जो है शुरुआत करता है। Mughal era was a golden phase for Delhi, except for two brief periods. The first was in 1540, when Humayun was on the run. And Sher Shah Suri made Delhi his Sher Shahi or Shergarh. But in 1555, Humayun recaptured Delhi. The second period began in 1569, when Akbar shifted his capital out of Delhi to Fatehpur Sikri.
period ended in 1638 when Shah Jahan shifted the capital back to Delhi. Among the Mughal emperors, Shah Jahan contributed the most to Delhi's landscape. देखो क्या था, अकबर जो है अपनी कैपिटल सिटी को दिल्ली से शिफ्ट करके फतेहपुर सीकरी ले जाता है, लेकिन शाहजहां जो है क्या करता है, वापस से रीशिफ्ट करता है फतेहपुर सीकरी से कैपिटल बनाता है वापस से दिल्ली को। और शाहजहां के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिल्ली का जो है रिकंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है, डेवलपमेंट होता है। Can you name some of the monuments that were constructed during Shah Jahan's reign? शाहजहां के राज में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, क्या आपको उनके नाम पता है? कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स शाहजहां ने बनवाए हैं? शाहजहानाबाद, या जिसको पुरानी दिल्ली कहा जाता है, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट, ये सब शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है, जामा मस्जिद भी और रेड फोर्ट भी, शाहजहानाबाद जिसको पुरानी दिल्ली कहा जाता है वो भी। अब 19th सेंचुरी में देखते हैं दिल्ली को। After the decline of the Mughal Empire, Delhi again lost its status as the power center. The British maintained Calcutta as their nodal city and reduced Delhi to a provincial town. क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, कैलकाटा को अपनी जो है कैपिटल बना के रखते हैं और दिल्ली जो है एक सिंपल सा एक टाउन बन के रह जाता है ब्रिटिश टाइम में। And so till 1947, when India became independent and Delhi became independent India's capital. ठीक है, तो फिर फाइनली इंडिया जब आजाद होता है तो Click the tabs to know more about the emergence of Delhi until the 19th century. फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 12th सेंचुरी में दिल्ली बिकेम अ कमर्शियल सेंटर, शुरुआत होती है इसकी, कमर्शियल सेंटर बनता है। तो महाराणा राजपूत जो है सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाते हैं, ये आप लोगों ने 6th-7th क्लास में भी पढ़ा होगा। रिच मर्चेंट्स लाइक राजस्थानी एंड राजपूत मर्चेंट्स केम टू ट्रेड, व्यापार के लिए यहाँ पे आते हैं। अमीर जो व्यापारी होते हैं और राजस्थानी होते हैं, राजपूत होते हैं। कॉइन्स कॉल्ड दिल्ली वॉल मिंटेड एंड सर्कुलेटेड वाइडली, ऐसे कॉइन्स जिनको दिल्ली वाल कहा जाता था, इनको जो है बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और सर्कुलेट किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान बिल्ट द सिटी ऑफ किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरा सिटी का निर्माण कौन करता है? पृथ्वीराज चौहान। The Chauhans only fortified it with the high-rise walls and ramparts. क्या करते हैं, ये जो है सिर्फ इतना ही जो है इसको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वॉल्स से, रैम्पार्ट से जो है इसको फोर्टिफाइड कर पाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं ताकि इनका कंट्रोल जो है यहाँ पे बना रहे। 13th सेंचुरी में दिल्ली कमर्शियल ग्रोथ अट्रैक्टेड द दिल्ली सुल्तान्स, जो सुल्तान होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं दिल्ली का जो कमर्शियल ग्रोथ है उसको देख के। दे क्रिएटेड अ क्लस्टर ऑफ गैरिसन टाउन, क्लस्टर क्या होता है, एक ग्रुप बनाते हैं वो छोटे छोटे गैरिसन टाउन का। अ सीट ऑफ पावर, दिल्ली बिकेम देयर कैपिटल सिटी टू। देखो क्योंकि यहाँ पे जो है लगातार कमर्शियल की ग्रोथ करता जा रहा था, तो क्या होता है, दिल्ली उनकी जो है कैपिटल सिटी भी बन जाती है। ममलूक डायनेस्टी कंट्रोल्ड ओनली फोर्टिफाइड टाउन्स, फोर्टिफाइड मतलब जितने टाउन पे उन्होंने कब्जा किया था सिर्फ वहीं पे ये लोग जो है ममलूक जो है डायनेस्टी के जो लोग होते हैं ये अपना कंट्रोल बना पाते हैं। दे ऑल्सो बिल्ट मेनी मॉन्यूमेंट्स लाइक द कुतुब मीनार, ये काफी सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाते हैं जैसे कि कुतुब मीनार जो है किन्होंने बनवाया था, ममलूक डायनेस्टी में। 14th सेंचुरी में द खलजी डायनेस्टी बिल्ट न्यू फोर्टेसेस एंड टाउन्स, खलजी डायनेस्टी आती है पावर में और नए नए किले और टाउन्स बनाती है। दिस वॉज टू प्रोटेक्ट दिल्ली ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, ये किस लिए बनवाती है नए नए फोर्टेसेस और टाउन्स, क्योंकि ताकि ये दिल्ली के जो है ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट कर सके और रीजनल ट्रेड को, जो आसपास के क्षेत्र का जो व्यापार था उसको बढ़ावा दे सके। अलाउद्दीन खलजी बिल्ट द सिरी फोर्ट एंड हौज खास, हौज खास और सिरी फोर्ट किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खलजी ने। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक कमीशन द तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट जो है किसने बनाया? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने। अराउंड 1398 AD तिमूर अटैक एंड डिस्ट्रॉयड दिल्ली लीविंग इट इन ruins, मतलब क्या करता है तिमूर, दिल्ली पे अट्रैक्ट करता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता है और उसको ruin कर देता है, बर्बाद कर देता है। 16th to 17th सेंचुरी में दिल्ली वॉज स्ट्रेटेजिकली पोजिशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। क्यों इन्वेडर अटैक कर रहे थे? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में एक इसकी जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। द सैयद्स देन
लोधीज रूल दिल्ली, सबसे पहले सैयद और उसके बाद लोधीज जो होते हैं वो रूल करते हैं दिल्ली पे। मुगल्स डिफीटेड द लोधी, उसके बाद मुगल्स की एंट्री होती है दिल्ली में भी और इंडिया में भी, जो कि लोधीज को हराते हैं। 1540 में हुमायूं जो है हार जाता है शेरशाह सूरी से और हैड टू फ्ली फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से उसको भाग जाना पड़ता है। शेरशाह सूरी क्या करता है, दिल्ली का रीनेम करता है एज शेर शाही और शेरगढ़, शेर शाही या शेरगढ़ के नाम से फिर वो दिल्ली को रीनेम कर देता है। लेकिन 1555 में क्या होता है, हुमायूं जो भाग गया था दिल्ली छोड़ के, जब वो शेरशाह सूरी से हार जाता है वापस से दिल्ली वापस आता है और रीगेन कर लेता है दिल्ली को। फिर 69 में क्या होता है, अकबर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू फतेहपुर सीकरी, दिल्ली से वो अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट कर लेता है अकबर, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। इसके बाद 1638 में शाहजहां होता है जो, वो फतेहपुर सीकरी से वापस अपनी कैपिटल को जो है दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। शाहजहां कॉल्ड इट शाहजहानाबाद, दिल्ली को क्या बुलाता है शाहजहां, शाहजहानाबाद बुलाता है, जिसको ओल्ड दिल्ली भी कहा जाता है। और काफी सारे मॉन्यूमेंट्स जैसे कि रेड फोर्ट और जो है जामा मस्जिद, उनका निर्माण करता है ये। 19th सेंचुरी में क्या होता है, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर दिल्ली टू वीकन एज अ पावर सेंटर, जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है खत्म होने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है, दिल्ली की जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी कमजोर पड़ने लगती है। ब्रिटिश फोकस्ड ऑन कैलकाटा एज नोडल सिटी, कैलकाटा पे जो है ब्रिटिशर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो एक पोर्ट टाउन भी होता है। 19th सेंचुरी में दिल्ली बिकेम जस्ट अ प्रोविंशियल टाउन, सिंपल सा एक टाउन बन के दिल्ली जो है रह जाता है। आफ्टर इंडिया अटेन्ड हर इंडिपेंडेंस दिल्ली वंस अगेन बिकेम द कैपिटल, जब भारत आजाद हो जाता है तो फिर से दिल्ली जो है भारत की कैपिटल बन जाता है। क्लियर है।